Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. I hope you all are doing well. Um, Welcome to online lecture 3 part B of industrial pharmacy. In the previous lecture we have completed the discussion on the heat transfer and mass transfer. In this part of the lecture we will start a new chapter, which is evaporation. Let us begin with the definition of evaporation. Theoretically, evaporation means simply vaporization from the surface of a liquid. Thus, no boiling occurs, and the rate of evaporation or vaporization depends on the diffusion of vapor through the boundary layers above the liquid. In practice, however, this would be too slow, so that the liquid is boiled, causing vapors to be liberated in the form of bubbles from the bulk of the liquid. Thus, a practical definition of evaporation is the removal of liquid from a solution by boiling the liquid in a suitable vessel and withdrawing the vapor, leaving a concentrated liquid residue. This means that heat will be necessary to provide the latent heat of vaporization, and in general, the rate of evaporation is controlled by the rate of heat transfer. Evaporators are designed, therefore, to give maximum heat transfer to the liquid with the largest possible area, suitable temperature gradient, and boundary layers reduced by all possible means. It must be remembered, however, that there may be a limit to heat transfer in practice, and apart from the economic reasons, there are a number of pharmaceutical and technical factors arising from the properties of the materials being handled. These may demand special considerations in the design or selection of evaporators. Theoretically अगर हम बात करें तो evaporation का मतलब simply vaporization है liquid की surface से. इसका मतलब ये है कि कोई बॉइलिंग अकर नहीं होती, लेकिन रेट ऑफ वेपराइजेशन डिपेंड करता है डिफ्यूजन के ऊपर, वेपर्स की डिफ्यूजन के ऊपर, जो एक्चुअली बाउंड्री लेयर से हो रही होती है अबव द लिक्विड. प्रैक्टिस में ये प्रैक्टिकली बहुत स्लो मेकैनिज़म है. इसी वजह से लिक्विड को बॉयल किया जाता है. जो बॉइलिंग है वो कॉज करती है वेपर्स को कि वो लिबरेट हों इन द फॉर्म ऑफ बबल्स बल्क ऑफ अ लिक्विड में से. इसी वजह से एक प्रैक्टिकल डेफिनेशन एवेपोरेशन की ये कहती है कि एवेपोरेशन एक्चुअली रिमूवल है लिक्विड का किसी भी सॉल्यूशन में से बॉइलिंग करने के बाद, बॉइलिंग ऑफ द लिक्विड के बाद. और ये बॉइलिंग मोस्ट ऑफ द टाइम अकर होती है या की जाती है किसी भी सूटेबल वेसल में, जो एक्चुअली विदड्रॉ करते हैं वेपर को, और पीछे आपके पास एक कंसनट्रेटेड लिक्विड रेजिड्यू बचता है. इसका मतलब ये है कि हीट नेसेसरी होगी ताकि बॉइलिंग के दौरान ये हीट लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन प्रोवाइड करे. और जनरली स्पीकिंग रेट ऑफ एवेपोरेशन एक्चुअली कंट्रोल होता है बाय रेट ऑफ हीट ट्रांसफ़र से, जैसे हम पिछले लेक्चर्स में पढ़ चुके हैं कि रेट ऑफ हीट ट्रांसफ़र किस तरह से हीट को ट्रांसफ़र करने में हेल्प आउट कर रहा होता है. एवेपोरेटर्स को जब डिज़ाइन किया जाता है तो इस चीज़ का ख्याल रखा जाता है कि जो भी डिज़ाइन इक्विपमेंट है वो मैक्सिमम हीट ट्रांसफ़र प्रोवाइड कर सके टू द लिक्विड लार्जेस्ट पॉसिबल एरिया के अंदर, और एक सूटेबल टेम्परेचर ग्रेडियंट मेंटेन रहे, और बाउंड्री लेयर्स रिड्यूस हों जितना पॉसिबल हो सके. ये याद रखने की बात है कि एक लिमिट होती है हीट ट्रांसफ़र के अंदर प्रैक्टिकली, और इकोनॉमिक रीजंस के अलावा इस फार्मास्यूटिकल और टेक्निकल फैक्टर्स इम्पॉर्टेंट होते हैं जो के ज़रूरी होते हैं काउंट करना जब आप एवेपोरेटर्स को डिज़ाइन कर रहे हैं या सिलेक्ट कर रहे हैं फॉर एनी काइंड ऑफ फार्मास्यूटिकल एवेपोरेशन. Let's now discuss the factors affecting evaporation. There are a lot many factors which affect the rate of evaporation and thereby affect the whole performance of the process. The first factor is temperature.
Apart from the significance of temperature as a factor that affects the rate of evaporation, its effect on drug constituents is of great importance. Um, Reference has already been made to the thermolability of many medicinal principles, and during the evaporation, temperatures that will cause the least possible decomposition must be used. And we have already discussed in previous classes that thermolabile materials are the most sensitive kind of materials that can be destroyed by heat or maximum amount of heat. There are many glycosides and alkaloids which can be decomposed at temperatures below 100 degrees Celsius, and some others, for example hormones, enzymes and antibiotics, are even more heat sensitive. Extremely heat sensitive substances may require special treatment if decomposition is to be avoided during concentration. Malt extract, for example, is prepared by evaporation under reduced pressure to avoid loss of enzymes, and for some antibiotics the only possible method is freeze drying. टेम्परेचर एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जो कि रेट ऑफ इवेपोरेशन को इफ़ेक्ट करता है, और इसके अलावा टेम्परेचर का इफ़ेक्ट ड्रग कॉन्स्टिट्यूएंट्स के ऊपर भी एक बड़ी इम्पोर्टेंस रखता है. थर्मोलेबाइल मेडिसिनल कंपोनेंट्स या थर्मोलेबाइल ड्रग्स को हम हाई टेम्परेचर्स में हीट नहीं कर सकते, और ड्यूरिंग इवेपोरेशन टेम्परेचर की वजह से डिकम्पोजिशन अकर हो सकती है. बहुत सारे ऐसे ग्लाइकोसाइड्स हैं और एल्कलॉइड्स हैं जो कि डिकम्पोज हो जाते हैं 100 डिग्री सेल्सियस या इससे भी कम टेम्परेचर में, लाइक हार्मोन्स या एंजाइम्स या एंटीबायोटिक्स, जो कि एक्सट्रीमली सेंसिटिव या मोर हीट सेंसिटिव सब्सटेंसेस हैं, which can be destroyed far less below than 100 डिग्री सेल्सियस. एक्सट्रीमली हीट सेंसिटिव सब्सटेंसेस के लिए स्पेशल ट्रीटमेंट रिक्वायर होती है अगर डिकम्पोजिशन को अवॉइड करना होता है ड्यूरिंग कंसनट्रेशंस या ड्यूरिंग ड्राइंग प्रोसेसेस. मेल्ट एक्सट्रैक्ट एक एग्जांपल है जिसे प्रिपेयर किया जाता है बाय इवेपोरेशन अंडर रिड्यूस प्रेशर, ताकि लॉस ऑफ एंजाइम को बचाया जा सके और कम टेम्परेचर के ऊपर सॉल्वेंट की एक्सट्रैक्शन हो सके और आपके पास कंसनट्रेट विदाउट डिकम्पोजिशन आ जाए. एंटीबायोटिक्स के केस के अंदर सिर्फ फ्रीज ड्राइंग एक ऐसा मेकैनिज़म है जिससे हम सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स को, वाटर मॉलिक्यूल्स को ड्राई करके रिमूव कर सकते हैं. द अदर फैक्टर इज़ टेम्परेचर एंड टाइम ऑफ इवेपोरेशन. Exposure to a relatively high temperature for a short period of time may be less destructive of active principles than a lower temperature with exposure for a longer period of time. It will be shown later that film evaporators use a fairly high temperature, but that the exposure of the liquid to this temperature is of very short duration. Whereas evaporating a pan may involve prolonged heating. टेम्परेचर और टाइम ऑफ एवेपोरेशन भी इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स हैं. एवेपोरेशन के दौरान अगर हाई टेम्परेचर का एक्सपोजर हो फॉर अ वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम तो ये लेस डिस्ट्रक्टिव होता है एक्टिव प्रिंसिपल्स के लिए एज़ कम्पेयर टू अ लोअर टेम्परेचर जिसे लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम के लिए आप एक्सपोज करते हैं टूवर्ड्स दी एक्टिव प्रिंसिपल्स और एक्टिव कंपोनेंट्स. फिल्म इवेपोरेटर्स हाई टेम्परेचर यूज़ करते हैं, लेकिन एक्सपोजर लिक्विड का फिल्म इवेपोरेटर में या टूवर्ड्स दी टेम्परेचर बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए होता है. इसके बरक्स जब हम इवेपोरेटिंग पैन्स यूज़ करते हैं तो इवेपोरेटिंग पैन्स में इवेपोरेशन के मैकेनिज़्म को कंप्लीट करने के लिए प्रोलॉन्ग हीटिंग रिक्वायर होती है. सो in summarization, we can say that exposure to relatively high temperatures for longer period of times, for shorter period of times can actually be less destructive rather than lower temperatures with exposure for longer period of times. The third factor which is important to be considered during evaporation is temperature and moisture contents.
Some drug constituents decompose more readily in the presence of moisture, especially at raised temperature. This is understandable since many breakdown reactions are examples of hydrolysis and other require water as a medium in which they act. This explains why evaporation to a concentrated condition may be carried out at low controlled temperatures in some cases, although the final drying can be performed at higher temperatures when little moisture remains. Belladonna extract is an example of this type. कुछ ड्रग कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऐसे होते हैं जो डिकम्पोज हो जाते हैं रेडीली मॉइस्चर की प्रेजेंस के अंदर, स्पेशली रेज टेम्परेचर में. ये अंडरस्टैंडेबल है क्योंकि बहुत सारे ब्रेकडाउन रिएक्शंस जैसे कि हाइड्रोलिसिस है वो वाटर रिक्वायर करते हैं एज ए मीडियम, जिसके अंदर टेम्परेचर की प्रेजेंस रिएक्शंस को मज़ीद तेज़ कर देती है. इवेपोरेशन कंसनट्रेटेड कंडीशंस के अंदर कैरी आउट किया जाता है लो कंट्रोल टेम्परेचर्स में सम केसेस के अंदर, लेकिन जो फाइनल ड्राइंग होती है उसे परफॉर्म किया जाता है हायर टेम्परेचर में जब बहुत कम मॉइस्चर रह जाता है, ताकि हम हाइड्रोलाइटिक रिएक्शंस को प्रिवेंट कर सकें. बेलाडोना ड्राई एक्सट्रैक्ट की एक्सट्रैक्शन एक एग्जांपल है इस तरह की टाइप की, जिसके अंदर इनिशियली लो कंट्रोल टेम्परेचर्स के ऊपर इवेपोरेशन होती है और फाइनल ड्राइंग हाई टेम्परेचर्स पे होती है. द नेक्स्ट फैक्टर इज टाइप ऑफ द प्रोडक्ट. द टाइप ऑफ प्रोडक्ट रिक्वायर्ड विल ऑफन डिसाइड which method and apparatus should be employed for evaporation. Evaporating pans or stills will produce liquid or dry products, but film evaporators will yield only liquid products. Hence, if a dry product is required, a choice must be made between a method that will form a suitable product directly, even if the method has certain technical disadvantages, and one in which a preliminary concentration is carried out, with the process completed by another method. Type of product जिस किस्म की रिक्वायरमेंट है वो डिसाइड करती है कि आप कौन सा मेथड यूज़ करेंगे और कौन सा एपरेटस यूज़ करेंगे फॉर इवेपोरेशन. इवेपोरेटिंग पैन्स या स्टिल्स लिक्विड्स प्रोड्यूस करते हैं और ड्राई प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस करते हैं, जबकि फिल्म इवेपोरेटर्स सिर्फ लिक्विड प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस करते हैं. सो जब आपको ड्राई प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट है तो एक चॉइस ऐसी की जाती है सिलेक्शन ऑफ इक्विपमेंट में जहाँ पे मेथड इस तरह का हो कि वो एक सूटेबल प्रोडक्ट डायरेक्टली बनाए. The last factor that we are going to discuss today is the effect of concentration. As the liquid becomes concentrated, the increasing proportion of solids results in elevation of the boiling point of the solution. This leads to a greater risk of damage to thermolabile constituents and to reduction of the temperature gradient, which is the driving force for heat transfer. In general, concentrated solutions will have increased viscosity, causing thicker boundary layers, and many will deposit solids that may build up on the heating surface and reduce heat transfer. Both these problems may be minimized by ensuring turbulent flow conditions. जैसे जैसे लिक्विड कंसनट्रेटेड होता जाता है, इसी तरह से प्रोपोर्शन ऑफ सॉलिड इंक्रीज़ होता जाता है, और प्रोपोर्शन ऑफ सॉलिड्स के इंक्रीज़ होने की वजह से बॉइलिंग पॉइंट सॉल्यूशन का एलिवेट करता है. एलिवेटेड बॉइलिंग पॉइंट की वजह से ग्रेटर रिस्क होता है थर्मोलेबाइल कॉन्स्टिट्यूएंट्स को, और जिसकी वजह से रिडक्शन होती है टेम्परेचर ग्रेडियंट में, क्योंकि सॉलिड कंटेंट इंक्रीज़ हो गया और बॉइलिंग पॉइंट रेज हो गया. एक्चुअली टेम्परेचर ग्रेडियंट में रिडक्शन की वजह से हीट ट्रांसफ़र डिक्रीज़ होती है, बिकॉज टेम्परेचर ग्रेडियंट एक्चुअली ड्राइविंग फोर्स है हीट ट्रांसफ़र के लिए. कंसनट्रेटेड सॉल्यूशंस जनरली इंक्रीज विस्कोसिटी रखते हैं, जिसकी वजह से थिकर बाउंड्री लेयर्स प्रोड्यूस होती हैं, और ये थिकर बाउंड्री लेयर्स का प्रोड्यूस होने का मतलब ये है कि सॉलिड्स डिपॉजिट हो रहे हैं या बिल्डअप हो रहे हैं हीटिंग सरफेस के ऊपर, जो इन टर्न रिड्यूस कर रहे हैं हीट ट्रांसफ़र को. इन दोनों प्रॉब्लम्स को मिनिमाइज़ किया जा सकता है बाय इंश्योरिंग टर्बुलेंट फ्लो कंडीशंस.
That is the end of this lecture. In the next lecture we will discuss the evaporators and its types. Thank you for listening to this lecture. For your queries, use HULMS or we can discuss in physical class. Allah Hafiz.